ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ اگر کم عمر لڑکوں کو کسی بڑی عمر کی عورت سے پیار ہو جائے، اوپر سے وہ عورت بھی کم عمر کے لڑکوں پر عاشق ہو جائے، تو ان دونوں کو گناہ کی دلدل سے کوئی بھی باہر نہیں نکال کر لا سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 30 سالہ مہوش کی خوبصورتی نے مجھے اس قدر اپنا دیوانہ کیا تھا کہ نہ ہی مجھے اپنی عمر یاد رہی تھی اور نہ ہی صحیح اور غلط کا فرق۔ میں عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا، پھر بھی اس کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو گیا تھا، اور اگر اس محبت کو ہوس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مفت میں مجھے مہوش جیسی خوبصورت عورت کا ساتھ تنہائی میں مل رہا تھا، اور وہ بھی اس کی پوری دیوانگی کے ساتھ، تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا؟ جب بھی وہ میرے قریب آ کر مجھے اپنے سینے سے لگاتی اور اپنی بےتابیاں مجھ پر لوٹاتی تو میں دنیا بھول جاتا۔ اتنی ہی بار وہ میرے بستر میں بھی ہم رات گزار چکے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ بنا جھجکے میرے سامنے بے حجاب ہو جایا کرتی تھی، کیوں اس نے مجھ جیسے غریب لڑکے کو اپنا آپ سونپ دیا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اور جب سچائی پوری طرح کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس نے تو ہر بار میرے سامنے اپنے آپ کو اسی وقت برہنہ کیا تھا جب اسے اپنی ہوس مٹانے کے لیے 11-12 سال کا بچہ۔ میرا نام شاہ زمان ہے، میں ایک ڈلیوری بوائے ہوں۔ میرا کام جگہ جگہ گھوم کر لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا تھا۔ اگرچہ اس کام میں پیسے بہت کم تھے، لیکن مجھ جیسے ان پڑھ اور پریشان حال لوگوں کے لیے یہ نوکری بھی بڑی غنیمت ہوتی ہے۔ شدید گرمی کے باوجود بھی میں اپنا کام پوری ایمانداری سے انجام دیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی دوپہر تھی جب بڑی مشکل سے پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک ویران سی جگہ پہنچ گیا تھا، جہاں دور دور گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا بھاری بھرکم باکس کندھے سے اتارا اور ڈلیوری پارسل نکال کر ایک دفعہ پھر پتہ کنفرم کیا اور دروازہ بجا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تقریباً ایک 35 سالہ عورت نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ دیر تک اپنی جگہ ہی کھڑا رہ گیا۔ کہنے کو وہ 30 سالہ عورت تھی، لیکن اس قدر حسین تھی کہ میں بس یک ٹک اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ بھرا بھرا جسم اور خوبصورت گوری رنگت، اس پر اس نے کچھ میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اسے مزید جو دلکش بنا رہا تھا۔ اس کا لباس بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ہی اس کے کپڑوں میں آستین تھے، نہ ہی گلے میں دوپٹہ۔ آسمانی رنگ کا آر پار ہوتا لباس اس کے وجود کی خوبصورتی کو چھلکا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ سجائے مجھ سے پوچھنے لگی، میرا پارسل آ گیا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا اور اس کا پارسل اسے پکڑا کر کاغذ پر دستخط لینے لگا۔ جیسے ہی میں نے پین اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو اس نے پین کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کو بھی چھو لیا۔ میرے بدن میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے چہرے پر ایک سرسری نظر ڈالی تو وہاں ایک شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی ہو، لیکن وہ میری بڑی بہن کی عمر کے برابر تھی، میرے ساتھ ایسی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ دستخط کرنے کے بعد وہ پیسے لینے کے لیے اندر جانے لگی تو میں نے اس سے پانی مانگ لیا۔ گرمی کی شدت تھی اور پھر یہ علاقہ شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھا، اسی لیے میں تھک گیا تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ ہی کھول دیا اور کہنے لگی، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، میں جب تک پیسے لاتی ہوں، آپ پانی پی لیجیے گا۔ اس نے بہت دوستانہ انداز میں بات کی تھی۔ اس کی آفر پر میں ایک دم گھبرا گیا۔ میں اس کے لیے بالکل اجنبی تھا اور وہ مجھے گھر میں بلا رہی تھی۔ میں نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگی کہ گرمی بہت ہے، بیٹھ کر سکون سے پانی پی لیں، پھر چلے جائیے گا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں اندر داخل ہو گیا۔ شاید گرمی کی شدت تھی یا پھر اس عورت کا حلیہ کہ بنا کچھ سوچے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ بڑی عالی شان طرز کا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ پانی کی بجائے میرے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی تھی اور پھر اندر چلی گئی تھی۔ میں جلدی جلدی کولڈ ڈرنک پینے لگا تاکہ پیسے لے کر واپس باہر نکلوں۔ یہ بات کچھ مناسب نہیں تھی کہ میں ایک غیر عورت کے گھر میں اس طرح داخل ہو جاتا، میں کسی بھی مشکل میں بھی پھنس سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پیسے لے کر آ گئی اور ساتھ ہی اس نے ٹپ کے نام پر مجھے 1000 روپے ایکسٹرا دے دیے۔ میرے لیے یہ 1000 روپے بڑی رقم تھی، ہم لوگوں کو تو ٹپ بھی بہت کم ملتی تھی، پھر ایک پارسل پر 1000 روپے اوپر مل جانا میرے لیے مال غنیمت جیسا تھا۔ البتہ پیسے دیتے ہوئے بھی اس نے میرے ہاتھوں کو پوری طرح ٹچ کیا تھا اور یہ بات میں نے اچھی طرح محسوس کی تھی، مگر ٹپ دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اسے اپنا نمبر پکڑا دیا اور بولا، میڈم اگر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز منگوانی ہو تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اس علاقے میں بہت کم چیزیں ہی دستیاب ہیں اور زیادہ تر یہاں پر لوگ چیز خریدنے کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں۔
या फिर ऑर्डर करना पड़ता है उन्हें। इसीलिए मैंने अपना नंबर दिया ताकि मेरा कुछ खर्चा पानी इसकी टिप से ही निकल जाए। उसने खुशी खुशी मेरा नंबर ले लिया और फिर मैं वापस चला आया। अगली ही सुबह मेरे पास इसका फोन आ गया। वो कुछ चॉकलेट्स और खाने पीने की चीजें मंगवा रही थी। ज्यादातर वो चीजें थी जो कम उम्र बच्चे खाते हैं। मुझे लगा कि शायद वो शादीशुदा और अपने बच्चों के लिए चीजें मंगवा रही है। मैंने कुछ वक्त निकाला और उसका सामान देने के लिए पहुंच गया। उसने फिर असल रकम से हटकर एक्स्ट्रा पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। आज भी वो पहले की तरह ही तैयार थी, बिल्कुल, बल्कि अब तो उसने पहले से भी ज्यादा जदीद लिबास पहन रखा था। उसके भीगे बाल उसके वजूद से चिपके हुए थे, जिसे देखकर मैं नजरें झुका चुका था। और फिर यह सिलसिला चल पड़ा। वो 30 साला औरत जिसका नाम महजबी था, हर दूसरे दिन मुझसे कोई ना कोई चीज मंगवाती और मुझे एक्स्ट्रा में बहुत सारे पैसे देती। वो खुद ही मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। कुछ भी चाहिए होता तो बिना झिझक कह देती। उसकी ज्यादातर चीजें ऐसी होती जो 12-13 साल के लड़कों से मुतल्लिक होती। मुझे यही लगता था कि उसका कोई 12 साल का बच्चा है जिसके लिए वो ये सामान मंगवाती है। मगर हैरत की बात थी कि मुझे उसे सामान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले थे, मगर मैंने कभी उसके घर में कोई बच्चा नहीं देखा था। दरवाजे पर भी हमेशा वो खुद ही आती थी और ऐसा लगता था जैसे अकेली रहती हो। 2-4 दफा मैं पानी के लिए अंदर भी गया था, तब भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे ये बच्चों वाला घर हो। मगर उसका सामान 12 साल के बच्चों के लिए ही होता था। एक रात 2 बजे के करीब मेरा फोन बजा तो मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा और ये देखकर हैरान रह गया कि महजबीन का फोन आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि इसे इतनी रात को अब किस चीज की जरूरत पड़ गई है। मैंने जल्दी से फोन उठाया, कान से लगाया तो बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगी, शाह जमान, खाने के लिए कुछ ला दोगे? मुझे बड़ी भूख लग रही है। दरअसल मैं सिलेंडर में गैस भरवाना भूल गई थी और तुम्हें तो पता है कि हमारे इलाके में गैस का कनेक्शन नहीं है, इसीलिए अब भूख सता रही है। तुम्हारे सिवा रात के इस पहर मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आया, इसीलिए मैंने सीधा तुम्हें ही फोन मिला दिया। उसकी बात सुनकर मैं कुछ तजुब्जुब का शिकार हो गया। रात के इस पहर शहर से बाहर की तरफ जाना और फिर वो भी एक औरत को खाना देने, ये मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था। मैं चाहता तो इनकार कर देता, लेकिन उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था। और फिर वो मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ऑफर भी कर रही थी। इस वक्त मुझे पैसों की बड़ी शदीद जरूरत थी। मैं खटारा बाइक मेरी जो जवाब दे रही थी और मुझे नई बाइक खरीदनी थी। इसीलिए मैंने दिन भर की थकन को नजरअंदाज किया और घर से निकल पड़ा। अगर मैं मना करता तो वो कहीं ना कहीं से ऑर्डर करके मंगवा लेती, उसका काम तो निकल जाता, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका दोबारा ना मिलता। लेकिन मेरी बदनसीबी थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैं उसके लिए खाना लेके चला था, इसीलिए मजबूरन मुझे उसके घर जाना पड़ा। और फिर उसने दरवाजा खोला और मुझे भीगा हुआ देखकर अंदर आने का इशारा करने लगी। मैंने एक नजर भर बरसती बारिश पर डाली, जिसमें अब दूसरी तरफ का दिखाई देना भी बंद हो गया था, और फिर उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी हालत देखकर वो खूब हंसी और कहने लगी, काश मुझे पता होता कि बारिश शुरू होने वाली है तो मैं तुम्हें कभी इतनी जहमत ना देती। उसने जल्दी से खाना लेकर एक तरफ रखा और मुझे तौलिया लाकर पकड़ा दिया। अपने बालों को खुश करते हुए मैं बगौर उस औरत को देख रहा था जो रात के इस पहर बहुत ही खूबसूरत नाइटी में मौजूद थी और मेरे जज्बात को पूरी तरह भड़का रही थी। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि मैं एक गैर मर्द उसके घर के अंदर मौजूद हूँ। वो मेरे सामने ही खाना खोलकर बैठ गई थी और मजे से खाना खा रही थी। साथ ही उसने मुझे भी खाने की ऑफर की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे जुकाम हो गया था और छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहने लगी, सुकून से बैठ जाओ, मैं खाना खाकर कहवा बनाती हूँ। मैंने गौर से उसे देखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बस बारिश रुकते ही मैं वापस चला जाऊंगा। मैं खुद भी यहाँ मजीद ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे सब्र की हद पार हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उस हुस्न की देवी को अपनी बाहों में ले लूं। मेरी बात सुनकर उसने अपना खाना खत्म किया और फिर एकदम ही मेरे करीब चली आई। एक गहरा सांस मेरी गर्दन पर छोड़ते हुए कहने लगी कि अब सुबह से पहले जाने की जरूरत नहीं है। इतनी रात को शहर जाने वाला रास्ता महफूज नहीं होता, और उस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी कुर्बत पाकर मेरी सांस रुकने लगी थी और फिर वो मुस्कुराती हुई बावर्ची खाने में चली गई। मैं यूं ही उसके घर में यहाँ वहां घूमने लगा और फिर मैंने उसे पूछ लिया कि आपका बेटा कहाँ है। मेरी बात सुनकर वो उछली और कहने लगी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप किस बेटे की बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैं हैरतज़दा हो रह गया और मैंने कहा कि जिस बच्चे के लिए आप पार्सल मंगवाती हैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। फिर वो हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी कि वो तो मेरी बहन के बच्चे हैं, मैं उनके लिए सामान मंगवाती हूँ। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये सुनकर मुझे और भी हैरानी हुई। मैं उससे पूछने लगा कि इस घर पर में कोई और नहीं है? वो कहने लगी
کہ यहाँ कुछ सालों पहले एक लड़की की मोहब्बत में उसने अपना घर छोड़ा था और फिर वो लड़का उसे अपनाने की बजाय छोड़कर चला गया। जब से वो यहाँ अकेली रहती है, उसने नौकरी करके यहाँ घर खरीद लिया था और चूंकि ये जगह शहर से बाहर है, इसलिए सस्ते दामों में मिल गई थी और अब वो ऑनलाइन काम करती है और तनहा जिंदगी गुजार रही है। एक बहन है जिससे उसका ताल्लुक रखा हुआ है और उसके बच्चों के लिए तोहफे वगैरह मंगवाती रहती है और फिर अपनी बहन के घर जाती है तो उन्हें वो चीजें दे। इससे कहवा बनाकर मेरे आगे रख दिया और खुद सोफे पर करीब होकर मेरे बैठ गई और फिर मुझसे मेरे मुतल्लिक पूछने लगी। मेरी जिंदगी में तो गरीबी के सिवा कुछ भी नहीं था। कहवा पीने के साथ साथ मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं सारे दिन का थका हुआ था, फिर बारिश में भीगने की थकन अलग हो गई थी। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया और कहने लगी, तुम सुकून से सो जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मेरा दिल तो चाह रहा था कि हाथ बढ़ाऊं और उसके घर में कमर में बाजू डालकर उससे कहूं कि जाने मन इस मौसम में मैं अकेला सोता अच्छा लगूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन ये कहने की मेरी हिम्मत ना हुई। बस मैं सोचकर ही रह गया। कुछ देर बाद मैं उसके बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करके लेटा था कि मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेहजबीन मेरे बिल्कुल पास बैठी थी और अपनी उंगलियां मेरे होठों पर फेरने लगी थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीना चीर कर निकल जाएगा। रात के इस पहर ऐसे मौसम में एक औरत की कुर्बत मुझे तड़पा रही थी और वो खुद भी मेरे बहुत बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी। फिर झुक कर उसने मेरी गर्दन पर एक खास निशान छोड़ा और कहने लगी कि मैं कब तक तन्हा जिंदगी गुजारूंगी, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। मेरे साथ जो धोखा हुआ उसके बाद मुझे मर्द जात से खौफ आता है, लेकिन तुम बड़े अपने अपने से लगते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे मोहब्बत हो गई है तुम्हें। मैं जबीन के लहजे में ऐसी खुमारी थी कि मैं उसे सुनता ही चला गया। वो अपने जज्बात खुद ही मुझ पर निछावर करने लगी। उसके अंदाज में कोई शर्मो हया या झिझक बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे जज्बात भी बेकाबू हुए और बेख्तियार ही मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। धीरे धीरे रात गुजरने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों गुनाह के दलदल में उतर गए। जब सुबह मेरी आंख खुली और मैंने खुद को महजबीन के बिस्तर पर बरहना हालत में पाया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। महजबीन मेरे बराबर में बहुत गहरी नींद सो रही थी। मैंने जल्दी से अपना लिबास पहना, महजबीन को जगाया, उसे बताया कि बारिश रुक गई है, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने अपनी खुमार आलूद नजरों से मुझे देखा और फिर मेरी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल करके कहने लगी, गुजरी रात तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगी। मैंने मुस्कुराकर उसे इजाजत ली और वापस निकल गया। घर पहुंचा तो अम्मा नाराज हुई, कहने लगी, इतनी बारिश में रात भर कहाँ था। अब मैं अम्मा को क्या बताता कि क्या गुल खिलाकर आया हूँ, इसीलिए झूठ कह दिया कि दोस्तों में था और फिर अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ा। शाम के वक्त महजबीन का फोन आया तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जैसे ही फोन कान से लगाया तो महजबीन कहने लगी कि इसका एक पार्सल एक जगह से उठाकर इस तक पहुंचाना है। पार्सल बहुत भारी है, वो मुझे गाड़ी के पैसे भी देगी, बस मुझे हिफाजत उसका सामान उस तक पहुंचाना है। मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसीलिए मैं राजी हो गया और मेरी नौकरी का वक्त भी खत्म हो गया था। इसीलिए बहाने में एक दफा फिर महजबीन से मुलाकात में कर लेता। इसीलिए मैंने उसके बताए हुए पते से बड़ा सा पार्सल उठाया जो बहुत ही भारी था और फिर इसे गाड़ी में लोड करके इसके घर पहुंच गया। महजबीन ने वो पार्सल अपने घर में रखवाया और फिर रूखे से अंदाज में कहने लगी कि मैं कुछ रूखे से अंदाज में जैसे वो कहने लगी कि मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, अभी रात की थकन नहीं उतरी है। मैं जो कुछ देर उसके साथ गुजारने की ख्वाहिश लेकर आया था, उसके रूखे अंदाज पर मेरा दिल बुझ गया और मैं वापस अपने घर लौट आया। मुझे लगा कि शायद बाकी गुजरी रात की थकन की वजह से वो आराम करना चाहती हो, लेकिन फिर 2 दिन तक उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और ना ही कोई पार्सल मंगवाया। 2 दिन बाद जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने खुद उसे फोन मिला दिया और कहा कि मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जलाकर तुम कहाँ गायब हो गई हो। मेरी बात पर हंसी वो और कहने लगी, तुमने मुझे इतना थका दिया था कि 2 दिन भी मेरी थकन नहीं उतरी। फिर वो कहने लगी कि मुझे तुमसे एक और पार्सल मंगवाना था। उसने मुझे एक दूर जगह का पता दिया और कहने लगी कि यह पार्सल भी एहतियात से पहुंचा दो। वो हर पार्सल के मुझे पैसे देती थी, इसीलिए मैं राजी हो गया और एक दफा फिर वो भारी भरकम पार्सल लेकर उस तक पहुंच गया जो पूरी तरह पैक था। मैंने उससे पूछा कि ये इतना भारी सामान क्या है। वो कहने लगी कि घर के कुछ काम की चीजें हैं और फिर कुछ पहन का सामान है। महजबीन ने जब मेरी नजरें पार्सल पर जमी हुई देखी तो मेरी बाहों में समा गई और मोहब्बत भरी बातें करते हुए मुझे अपने बेडरूम तक ले गई। फिर उसने कुछ वक्त मेरे साथ गुजारा, लेकिन वो सारा वक्त बेचैन रही, जैसे उसे किसी बात की जल्दी हो या फिर कोई परेशानी हो। मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी बेचैन क्यों है। अपनी हवस पूरी करके मैं अपने घर लौट आया और एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ते में उसने मुझसे कुछ भी ना मंगवाया। कभी कभार मैं उसे खुद फोन करता तो वो मुझसे अच्छे से बातचीत कर लेती। हफ्ता गुजरा था
कि फिर उसने मुझे ऐसा ही एक पार्सल उठाने को कहा और जब मैं पार्सल लेने इस जगह पहुंचा तो मेरी छठी हिस्स चीख कर मुझे कुछ बुरा होने का इशारा देने लगी। लेकिन मुझे समझ ना आया कि क्या होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस का छापा पड़ गया और मेरी जान निकल गई। जो आदमी मुझे पार्सल देने के लिए इस जगह आया था वो वहां से फरार हो गया। उस पार्सल के साथ मैं पकड़ा गया। पुलिस ने मेरे सामने ही वो पार्सल खोल कर देखा और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि पार्सल के इस बॉक्स में एक 12 साल बच्चा बेहोश पड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अपनी डिलीवरी बॉय होने में यूनिफॉर्म में था। इसीलिए मैंने पुलिस वालों से कहा कि मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ। एक मैडम ने मुझसे ये पार्सल मंगवाया था, मैं वही उठाने के लिए आया हूँ। इसके अंदर क्या है इस बारे में मुझे कोई मालूम। पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू कर दी और फिर मैं जबीन का पता भी हासिल कर लिया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पार्सल के अंदर एक 12 साल बच्चा क्यों बेहोश पड़ा हुआ था। पिछले पार्सल में भी न जाने क्या था। मैं जबीन इन बच्चों को कहाँ से मंगवा रही थी और इनका क्या कर रही थी। बहुत सारे सवालात थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे तो इस बात की फिक्र सता रही थी कि कहीं मैं जबीन किसी गलत काम में मुझे भी साथ में ही ना पकड़ लिया जाए। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका था और मैं जबीन के साथ गुनाह कर बैठा था। इसके अलावा उसके और किसी जुर्म में मेरा कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने मैं जबीन के घर छापा मारा तो वहां से 4 12 साल के बच्चे बरामद हुए जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके जिस्म के कुछ अज़ा भी निकाले जा चुके थे। मैं जबीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर रखा था और मेरा भी बयान लिया जा रहा था। मैंने हर बात सच सच बताना ही गनीमत समझा था। फिर मैंने शुरू से आखिर तक अपनी और महजबीन की मुलाकात की कहानी पुलिस वालों के आगे बयान कर दी। पुलिस वालों ने मेरा बयान रिकॉर्ड कर लिया था। फिर भी मुझे छोड़ा नहीं गया था क्योंकि ये चाइल्ड एब्यूजिंग और ट्रैफिकिंग का मामला था और आजकल इस पर बहुत सख्ती से कानून बन चुके हैं। मेरे घर वालों ने मेरे हक में वकील करवाया और फिर मुझे अपने वकील के जरिए महविश की पूरी हकीकत पता चली। वो एक ऐसे गिरोह के साथ जुड़ी हुई थी जो कम उम्र बच्चों को अगवा करते हैं और उनके जिस्मानी अज़ा निकाल कर बाहर मुल्कों में फरोख्त कर देते हैं और अगर इनके बाद इन बच्चों में ताकत बाकी रहे तो वो इन्हें जिस्म फरोशी और फकीरी के धंधे में डाल देते हैं। महविश ने पहले मुझे अपनी मासूमियत के जाल में फंसाया, फिर अपनी मोहब्बत की बोतल में उतारा और उसके बाद मेरे जरिए वो बच्चों तक रसाई हासिल करने लगी। क्योंकि मेरे जिस्म पर एक बहुत बड़ी कंपनी का यूनिफॉर्म होता था, इसीलिए ज्यादातर जगहों पर ना ही मेरे चेकिंग होती थी और ना ही मुझे रोका जाता था। मेरे जरिए बच्चों का पार्सल मंगवाना एक आसान काम था। यही सब देखते हुए उसने मुझे अपनी मोहब्बत में फंसाकर मुझसे ये काम करवाया था। मैं इस कदर नादान था कि मुझे लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और इसीलिए अपना हम मुझ पे लुटाती है। लेकिन वो तो एक बदजात किस्म की औरत थी जिसने अपना घिनौना धंधा चलाने के लिए अपने जिस्म और अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं की थी। मेरे घर वाले इस सारे मामले पर बहुत ही परेशान थे। हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी क्योंकि हर कोई जान गया था कि मेरा एक 30 साल की औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मेरी माँ मुझसे पुलिस स्टेशन मिलने के लिए आई तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे बस कुछ ही लाइनें कहीं और वो चली गई। मेरी माँ के कहे लफ्जों ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। मेरी माँ ने रोते हुए कहा था, तेरे बाप ने तुझे हलाल की कमाई खिलाकर बड़ा किया था। मैंने तेरी अच्छे से तरबियत की थी, कभी सोचा भी नहीं है तू इस रविश पर चल पड़ेगा और एक बदकिरदार औरत के झांसे में आ जाएगा। बेहतर यह है कि तू इसी दुनिया में सजा भुगत ताकि तेरी आखिरत माफ हो जाए। और फिर मेरी माँ वापस चली गई। मैं फूट फूट कर रो दिया, लेकिन वालदैन तो वालदैन ही होते हैं। मेरे घर वालों ने से मेरे हक में केस लड़ना शुरू किया था और फिर पूरे 6 महीने बाद मैं बाइज्जत बरी हो गया था क्योंकि बच्चों वाले मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने अनजाने में जो गलती की थी उसे माफ कर दिया गया था। मैं जेल से छूटकर बाहर तो आ गया, लेकिन मैं ये दुनिया हम जैसे लोगों को माफ नहीं करती। आज भी लोग मुझे गुजरे हुए माजी के याद करते हैं। शायद यही मेरी सजा है कि मरते वक्त दुनिया को मेरी बुराई याद रहे। शायद इसी तरह मेरी हालत भी संवर जाएगी। इसी तरह ही शायद मेरी आखिरत भी आसान हो जानी थी क्योंकि कुछ भी हो, मैंने जना जैसा गुनाह किया था और अब मुझे इस बात का बुरी तरह एहसास होता है कि ये गुनाह कोई मामूली गुनाह नहीं था। महजबीन को 7 साल की कैद हो गई थी। वो अपने हिस्से की सजा भुगत रही थी। मैं अपने हिस्से की तमाम जैसे अपनी उम्र के लड़कों से यही कहूंगा कि कभी भी ऐसी औरतों के जाल में ना फंसे, ना ही किसी गैर औरत के घर में तन्हाई में दाखिल हो, ना ही आंखें बंद करके कभी किसी पर एतबार करें।